this is not the way to apply four low. Green light आ गई है, means four wheel drive is engaged. Hello friends, welcome to my channel, and this is episode 3 of Hilux Mastery, and today we are going to cover four wheel drive theory and practical session. Shefali, are you up for that? Okay. तो अभी ज्ञान कैसे काम करता है बाद में, बट बेसिकली विल गो थ्रू लाइक हाउ टू अप्लाई H4 L4 इन टोयोटा हाइलक्स. ओके, सो बेसिकली टोयोटा हाइलक्स में एक बटन दिया है यहाँ पर, तो इट्स सिंपल, यू हैव टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, एंड एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन यहाँ पर ये लाइट ग्रीन लाइट आ गई है. सो ग्रीन लाइट अगर आ गई है दैट मीन्स फोर व्हील ड्राइव इज एंगेज्ड. एट टाइम्स क्या होता है, ये ब्लिंक करती रहती है. तो ब्लिंक करने का मतलब इट्स नॉट अ मैल फंक्शन और कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट दैट कि H4 एंगेज नहीं हुआ है. तो एट टाइम्स अगर ये ब्लिंक कर रही है, स्टेबल नहीं हो रही है, तो यू कैन ट्राई टू पुट व्हीकल इन रिवर्स और यू कैन ट्राई टू स्लाइटली मूव द व्हीकल, एंड in 99% of the conditions it should be stable unless there is some problem with the four wheel drive mode. One more thing, H4 as per Toyota manual you can apply even when the vehicle is moving. Okay. If the vehicle speed is less than 100 kilometers per hour तो आप H4 को on the fly लगा सकते हो, right? And green light stable हो गई है, that is the way to know that four wheel drive H4 engage हो चुका है, right? Now coming to L4, अगर यहाँ पर देखो, this is low range. Low range means more rotational power, less of speed. So जहाँ पर आप कीचड़ में, मड में, सैंड में जहाँ पर फंसे हो, जहाँ पर आपको बस धीरे से निकल जाना, speed doesn't matter, but you just need to come out of that tricky situation. So low 4 is more of torque. And in Toyota Hilux, the way you apply L4 is you push it and rotate it. और यहाँ पर 4LO लिख के आ जाएगा. Now if you see, if you can hear and see both, यहाँ पर बीपिंग आ रही है. बीप का मतलब है कि there is some, the steps we have not followed properly. हमने कुछ गड़बड़ किया है, that's why 4LO नहीं लगा रहा है वो. So basically beeping is its way of saying that no, this is not the way to apply 4LO. Okay. So if you would have gone through the manual, तुम्हें पता होता कि मैंने क्या गड़बड़ करी है, but I will tell you, 4LO लगाने के लिए सबसे पहले vehicle should not be moving, it should be stationary. ठीक है. Number 2, it should always be in neutral position. Okay. Right? So if you see now, N means neutral, and now I'll try to again push and rotate it clockwise. अब beep नहीं आई है और वो stable हो गया, 4LO stable हो गया है. We are not able to capture it, but एक third सी sound आई थी, very small. So वो sound का मतलब होता है कि 4LO basically it logged. Okay. So this is how you apply 4LO, right? So 4LO, 4 high. So are you up for practical session? Sure. Okay. Hi Shivali. Hi. So you now know how to get the vehicle stuck in sand, right? Stuck, so of course. Can you give me a demo of like whether you are actually stuck? Okay, I'm in drive mode. Okay. TRC is by default on. Okay. It's not off, and LSD is not on. Okay. I'll try to take it forward. Okay, and it's not going. I can feel my vehicle sinking into the sand. I think the back wheel, it's not moving. Okay, it's complete throttle and it's not going. Okay. Now I will say you try to put 4 high and see how easy it becomes to move the vehicle. Okay. I'll put, I've just rotated the knob. It's 4 high now. Blinking for now. Is it engaged? No, it's not. I'll put the reverse gear. It's engaged now. Yeah. This is engaged, right? Yeah, this is engaged. Okay, so basically the idea is now you are in 4 high, right? I'm in 4 high. So 4 high is as good as in terms of rotating power. Engine is now cutting the power and putting it front and rear both, right? Okay. So that's very simple. Okay. Now, should I drive? Yep. It's in drive mode. It's in drive mode. I just want you to feel that whether you are able to move and what is the difference when you put 4 high. It's like a breeze. So as you can see now, the not only the rear but front wheels also started moving. So that was a basic lesson about 4-wheel drive in high mode. Okay, so Shivali has got the vehicle stuck again. If you see, पीछे वाले दोनों पहिया मूव कर रहे हैं, but they are rotating on their axis. Vehicle is not moving. Okay, शिवाली फिर से फंसा दी.
रॉयली स्टक। और अगर मैं इधर वाला पहिया देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अंदर है। ओके शेफाली, फॉर द व्यूअर्स कैन यू I can give spin it. the vehicle, yeah? It's giving. Okay. I'm giving a full throttle. ओके ओके It's ओके on the floor. It's not Okay. even rotating. ओके ओके। अच्छा शेफाली, वुड यू लाइक टू ट्राई LSD इन दिस मोड एंड सी द डिफरेंस? आपको LSD पता है राइट? इट्स हाँ। स्टिल टू व्हील ड्राइव। हाँ. सो So I'll switch on the LSD. Wait. Yes. Auto LSD is on now, and Okay. it's stable as well. You want to show it to your people? ओके तो ठीक है? LSD लगा दिया है, हाँ। तो इट्स स्टिल टू व्हील ड्राइव मोड है Still ना? two-wheel drive. Okay, let's see what is the difference if you try to pull the vehicle. नहीं move हो रही है. Okay, and now let's try to pull it in 4 high. ठीक है. So now you know how to apply 4 high, right? हाँ. I've just applied 4 high. Auto LSD के साथ ही वो चमक रहा है. Okay. And मैं ऐसे कर देती हूँ so that. अब मैंने एक बार के लिए जस्ट रिवर्स गियर लगा दिया है Okay. ताकि इट बिकम ठीक है। स्टेबल. ठीक है. ठीक है। TRC is turned off. Okay. I've gone back to the drive mode. 4 wheel drive है तो आगे पहिए दोनों, आगे पीछे दोनों पहियों को मिलेगी पावर. Now let's see if you can come out. टोयोटा वालों को 4 हाई दे देते हैं, LSD ऐसे ही दे दिया. Okay. In terms of traction control, auto LSD, 4 high, what is the feel? 4 high is the best. 4 high is the I'm gonna best. use it. Okay, great. So bye for now. Bye. Thank you. Thanks to you. वाली 4 high 4 low आपको चांस नहीं मिला, but I just wanted you to get a feel of 4 high only for now. So how does it feel, and any difference you could tell from the practical session? डिफरेंस तो मतलब मैं बहुत इजीली बता सकती हूँ. लास्ट टाइम हमने जब LSD और TRC के साथ ट्राई किया था, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. सैंड में हमारी गाड़ी थी, अभी शायद हम काफ़ी लूज सैंड में. इट्स ऑलमोस्ट डबल दैन व्हाट वी हैड लास्ट टाइम. आई थिंक लास्ट टाइम मेरा हाफ सिर्फ व्हील अंदर था, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम TRC और उसके साथ LSD के साथ उसे बाहर निकालने. बट आज तो इट वाज लाइक यू नो इट वाज, हाँ मतलब नो एफर्ट नथिंग. ना आपकी गाड़ी कहीं फ्रिक्शन दिखा रही थी. इट वाज सो इजी. इट वाज लाइक यू नो बटर ऑन अ पैन कि वो बस निकल जाएगा टाइप्स. Okay. बट ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन कि फिर 4 हाई क्यों नहीं दे दिया, मतलब LSD TRC क्यों चाहिए गाड़ी में? Okay, so I'll get back to your question. तुमने पहले पूछा था. हाँ. See, basically there are 2 types. Permanent all wheel drive, जैसे कई गाड़ियों में तुमने देखा होगा पीछे लिखा रहता है AWD. So AWD means permanent all wheel drive, मतलब इंजन 4 पहियों को permanent power दे रहा है, all time power दे रहा है. ठीक है. And then there are on demand 4 wheel drives. ठीक है. On demand like cars, right? You हाँ slightly जी. guessed Toyota कि भाई आप H4 पे switch करते हो या L4 पे switch करते हो. हाँ, हाँ That जी. is on demand, right? हाँ जी. But before I explain कि difference क्या होता है, 2 important things कि 4 wheel drive puts lot of pressure on the vehicle system, and there are chances it might break down if proper precaution is not taken. Okay, ठीक है. ठीक है. ठीक है. So that is why on demand कि if you are stuck or you actually need, you apply it. But On question, बट देन 4 व्हील ड्राइव में तो हमेशा ही प्रेशर होएगा ना, मतलब जैसे अभी हम रेत में थे तो इट विल बी अ टफ सिचुएशन. या मैं किसी खड्डे में होंगी तभी मैं 4 व्हील ड्राइव लगाऊंगी, तो फिर वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं क्या? there might be, and that's why going through the owner's manual is a must, right? Okay. That's why I said that under 100 kilometers per hour speed you can apply 4 high anytime in the moving vehicle but as well. L4 जैसे आपने लगाना चाहा, it did not allow, it started beeping. हाँ. So you had to put the vehicle in न्यूट्रल. and then applied, right? हाँ जी. अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन है. व्हीकल है, मूव कर रहा है, ठीक आप है. स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो. ठीक है. लेट्स से आपने लेफ्ट टर्न लिया, हाँ. तो लेफ्ट टर्न में लेफ्ट और राइट में से कौन सा व्हील कम मूव करेगा और कौन सा ज्यादा करेगा? कैन यू गेस? आई थिंक आपका जो अगर लेफ्ट टर्न करे तो लेफ्ट वाला जो है वो मूव कम करेगा. हाँ. और जो राइट वाला वो ज्यादा मूव करेगा क्योंकि उसको आर्क निकालना है और उस पे प्रेशर भी ज्यादा होगा. एग्जैक्टली राइट. हाँ. अब 2 व्हील ड्राइव में सो राइट, तो अगर लेकिन आपका इंजन तो पावर दे रहा है दोनों व्हील्स को, ठीक है. तो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं. हाँ. तो उसमें क्या होगा? अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो अंदर वाले और बाहर में से बाहर वाला तो ज्यादा मूव कर रहा है. हाँ. तो लेफ्ट वाले को वो जबरदस्ती पुश करेगा, स्लिप करवाएगा, राइट? हाँ. मेक Makes सेंस? sense. That is where a component called differential comes in.
ठीक है। डिफरेंशियल मेक श्योर करता है कि कैसे अंदर वाले को कम मूवमेंट देना है और बाहर वाले को ज्यादा देना है। ठीक है। तो हमेशा आगे और पीछे जब भी व्हील्स मूव करते हैं, बीच में मैंने एक टर्म लिया था डिफरेंशियल। ठीक है। सो डिफरेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रोटेशन पावर, बट किसको कम देनी, किसको ज्यादा देनी है। ओके ओके राइट। तो वो उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस है कि उसे पता होता दैट है इज कि द डिफरेंशियल कंपोनेंट, राइट। वाह, ओके, वाह। अब दूसरी चीज सोचो, टू व्हील ड्राइव में तो फाइन है, डिफरेंशियल ने लेफ्ट वाले को कम घुमाया, राइट वाले को ज्यादा घुमाया, राइट। लेकिन आपने फोर व्हील ड्राइव लगा दिया, अब आपके इंजन की पावर आगे वाले को भी उतना दे रही है और पीछे वाले को भी दे रही है। नाउ इफ यू आर रोटेटिंग और मूविंग राइट, तो देयर आर चांसेस कि व्हील स्लिप करेंगे, राइट। अब अगर आप टारमैक पे हो तो स्लिप करेंगे तो क्या होगा? चांसेस तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी और स्किड से ज्यादा आपका व्हीकल ब्रेक डाउन कर जाएगा, राइट। दीज आर मैकेनिकल कंपोनेंट्स, राइट। सो दैट इज व्हाई ऑन डिमांड, एंड उसी में आई मीन ये इतनी छुई मुई जैसे नहीं है, दे आर रोबस्ट, बट स्टिल अगर आप साइंस देखो कि लेफ्ट टर्न पे लेफ्ट वाला कम मूव करेगा, राइट वाला ज्यादा मूव करेगा, राइट टर्न पे राइट वाला राइट। इसी तरह से डिफ लॉक, जब दोनों पहिए रोटेट लॉक हो गए, राइट। अब अगर दोनों पहिए लॉक्ड हैं, लॉक मतलब क्या होता है? दोनों को डिफरेंशियल ने लॉक कर दिया, दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। अच्छा। लेफ्ट और राइट में से दोनों जितना मूवमेंट है दोनों को बराबर जाएगा। उसमें अगर तुमने गाड़ी मोड़ी तो क्या होगा? बाहर वाला ज्यादा मूव करेगा, अंदर वाले को भी उतना मूव करना है, तो वो ब्रेक डाउन, राइट। ओके, इट माइट ब्रेक डाउन, राइट। सो दैट इज व्हाई ऑन डिमांड फोर व्हील ड्राइव, एंड नॉर्मली इट इज नॉट रिकमेंडेड ऑन ब्लैक टारमैक, क्योंकि यहाँ पर सैंड है, अगर स्लिप हो भी रहा है तो पहिया तुरंत स्लिप कर गया, तो देयर आर द वियर एंड टियर के चांसेस कम हो गए, राइट। बट दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव नहीं देते हैं। नाउ इन ऑल व्हील ड्राइव, वो तो टारमैक पे भी चल रहा है। फोर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव सेम है ना? डिफरेंट है। दिस इज ऑन डिमांड फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव इज परमानेंट। उसमें देयर आर मल्टीपल डिफरेंशियल कंपोनेंट्स जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आगे वाले को इंजन की कम रोटेशन पावर देंगे और पीछे वाले को ज्यादा, प्लस लेफ्ट राइट में भी कैसे बैलेंस करना है। सो दे विल इंश्योर कि जिस व्हील को सबसे कम मूव करना है उसको सबसे कम रोटेशन जाए, जिसको सबसे ज्यादा मूव करना है सबसे ज्यादा रोटेशन जाए। तो देयर इज वन मोर कंपोनेंट कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंशियल। तो एक तो दोनों व्हील्स के बीच में डिफरेंशियल है जो लेफ्ट राइट में वो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट, प्लस एक सेंट्रल है जो डिसाइड करेगा कि आगे कितनी जाएगी, पीछे कितनी जाएगी, लेफ्ट राइट तो कितनी जाएगी, सो दैट व्हील विच इज गोइंग टू मूव मिनिमम उसे सबसे कम रोटेशन मिले, और जब सबसे ज्यादा मूव करेगा उसे सबसे ज्यादा रोटेशन मिले, राइट। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑल व्हील ड्राइव्स एंड देन दीज आर ऑन डिमांड व्हीकल्स, जहाँ पर सेंट्रल डिफरेंशियल नहीं होता है, यहाँ पर ऑन डिमांड फोर व्हील ड्राइव होता है, व्हिच यू अप्लाई एंड then you get out of the situation, right? Understand. But normally it is expected कि आप two wheel drive mode में ही drive करो। हाँ जी, of course, हाँ जी। So I think that's it for today, and maybe next time we will try to apply 4 low. हाँ। Any other questions in terms of 4 high, 4 low? Not with me as of now. You can ask. I was expecting कि when to apply 4 high, when to apply 4 low, but we can park it for a later stage, right? Okay, sure. That is for now. Thank you. Thank you. Thanks to you, rather. Okay. Bye-bye. Bye. Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback, and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.